Good morning, my dear student. Today we will continue your class 12th history chapter Mahatma Gandhi and National Movement of India. My dear student, if you have remember my previous class where we have read about the non-cooperation movement, we have also read about the Amritsar Massacre, Rowlatt Act, and the struggle of Gandhi in India. My dear student, I have already informed you about Gandhian ideology and Gandhian weapons which he used in national movement. Gandhi, he was foresighted. He know that Britishers, they were very much powerful. If we restricted them with the weapons, then they result not in favor of Indians, in favor of our nation. So that's why Mr. Gandhi accepted and adopted the non-violence movement. My dear student, I have already taught you about the Simon Commission, and during the time between non-cooperation to civil disobedience, what happened. Again, I remind you that Mahatma Gandhi, as you know, was against the violent movement. He abruptly called off non-cooperation movement when in February 1922, a crowd of peasants set fire to police station in Chauri Chaura. 22 policemen were killed on that day. The peasants were provoked because the police had fired on their peaceful demonstration. I already taught you that what happened in Chauri Chaura. The peasants, they tried to march silently with full of non-violence, but the policemen, they opened fire on them. The various peasants, they were died, and someone, they were wounded. The whole public of the Chauri Chaura, who was assembled in that मार्केट, उन्होंने थाने को घेरा और थाने में आग लगा दी. 21 सिपाही और एक दरोगा थाने में जल के मर गए. गांधी को इससे बड़ा दुख हुआ. गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया. एंड वंस द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज ओवर, गांधी जी's follower stressed that the Congress must undertake constructive work in the rural area. Other leaders such as Chittaranjan Das and Motilal Nehru argued that the party should fight election to the councils and enter them in order to influence government, police through sincere social work and village their support base. They proved to be very useful in launching the civil disobedience movement in 1930. Two important developments of the mid-1920s were the formation of Rashtriya Swayamsevak Sangh RSS, a Hindu organization, and the Communist Party of India. These parties have held very different ideas about the kind of country India should we find out about their ideas with the help of your teacher. The revolutionary nationalist Bhagat Singh too was active in this period. My dear student, if you remember, I told you that extreme followers, extremist follower, they started their activities on the very high way, बहुत ही उचित, बहुत ही ज़्यादा संख्या में भारत में क्रांतिकारी आंदोलन इस एरा में चलने लगे. I already told you about that the Bhagat Singh and Public Safety Bill.
what happened there, you have to read your book and you can easily understand the story of Bhagat Singh. My dear student, the decades closed with the Congress resolving to fight for Purna Swaraj, complete independence. In 1929, under the presidency of Jawaharlal Nehru, consequently, Independence Day was observed on 26 January 1930 all over country. My dear student, I hope you remember that when I taught you about the Ravi and Lahore Congress session. Lahore Congress session 1929, when Gandhiji was appointed the Congress session president, but Gandhiji denied and appointed Pandit Jawaharlal Nehru as a session president. Jawaharlal Nehru was a young leader who was very much energetic person, and in Lahore session, the 1 year of the Nehru reports and 1 year the time which was given by the Indian leaders to the Britishers कि भारतीय जो राजनेता थे उन लोगों ने ब्रिटिशर्स को 1 साल का समय दिया था नेहरू रिपोर्ट पे काम करने के लिए और अपनी चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए। नेहरू रिपोर्ट पे कोई काम नहीं हुआ। फिर गांधी जी ने अपने न्यूज़पेपर यंग इंडिया में उन्होंने कुछ डिमांड रखी, 11 सूत्री मांग रखी, और गांधी जी ने कहा कि यदि ये मांग पूरी नहीं हुई तो हम ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट एक मूवमेंट चलाएंगे। यही मूवमेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। दिस मूवमेंट was called civil disobedience, and Gandhiji adopted weapons, their own weapons, Satya Ahimsa Satyagraha, non-violence, truth and demand of the truth. Salt Satyagraha was started by Mr. Gandhi. Here one question also arises in your mind, that why Gandhi took salt for their campaign, for their movement. But how to say without any hesitation, you can say that salt is a necessary needs for all human beings, चाहे वो अपर क्लास का हो चाहे वो लोअर क्लास का हो। अपर क्लास पीपुल्स एंड लोअर क्लास पीपुल्स बोथ, the salt is very important role in their meal. खाने में नमक की सबसे अधिक आवश्यकता है, और ड्यूरिंग दैट टाइम साल्ट पे काफी लंबा हैवी टैक्स इंपोज किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। सामान्य आदमी टैक्स नहीं, इतनी ज्यादा नमक की कीमत थी कि वो नमक पर टैक्स नहीं दे सकता था। गांधी जी ने इन चीजों को देखा, इन चीजों को समझा, और इसीलिए गांधी जी ने साल्ट को अपना वेपन बनाया इस मूवमेंट के लिए। For several years after the non-cooperation movement ended, Mahatma Gandhi focused on his social reform work. As I told you, that Gandhi, after जेल से फ्री करने के बाद गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और क्रिएटिव वर्क पे ध्यान दिया। गांधी जी in 1928, however, he began to think of re-entering politics. That year, there was an all-India campaign in opposition to the all-white Simon Commission sent from England to inquire into condition in the colony. Gandhiji did not himself practice in this movement, although he gave it his blessing, as he also did to Peasant Satyagraha in Bardoli in the same year. In the end of December 1929, the Congress held its annual session in the city of Lahore. The meeting was significant for two things. First, the election of Jawaharlal Nehru
as president, signifying the passing of the baton of leadership to the younger generation, and proclamation of commitment of Purna Swaraj or complete independence. The year of 1929 was very much important. Why? Because in this year, the old leader decided that we have to hand over the baton, this movement and leadership baton to youngers, in the hand of youngers. यंगर्स के हाथों में ये स्वतंत्रता के आंदोलन के नेतृत्व को उन्होंने देने के लिए तय किया। और दूसरा कारण जो सबसे महत्वपूर्ण था वो ये कि भारतीय नेताओं ने अब इस वर्ष को पूर्ण स्वराज के रूप में मनाने का तय किया। पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। नाउ द पेस ऑफ पॉलिटिक्स picked up once more. On 26 January 1930, the Independence Day was observed with the national flag being hostile and the different venues, and patriotic songs being sung. Gandhiji himself issued the press's instructions as to how the day should be observed. It would be good, he said, if the declarations of independence is made by whole village, whole city. Even it would be well if all the meetings were held at the identical minutes in all the place. गांधी जी ने इस आंदोलन को खुद ही अपने हाथ में लिया। कहते हैं कि ये पूरा असहयोग आंदोलन जब समाप्त हुआ, असहयोग आंदोलन समाप्त होने के बाद गांधी जी को जेल हुई, और गांधी जी जब जेल से 1924 में फ्री किए गए तो उन्होंने क्रिएटिव मूवमेंट की ओर अपना ध्यान दिया। 1928 में उन्होंने पुनः राजनीति में प्रवेश की, पॉलिटिक्स में वो आए। उसी वर्ष ब्लैक मैन्स कमीशन, इट मीन साइमन कमीशन, भारत पहुंचा। कॉलोनियल जो रूल्स थे उनको इंस्पेक्ट करने के लिए, उनकी जांच करने के लिए। मैंने आपको बताया था कि हर 10 साल बाद संवैधानिक सुधारों के ऊपर एक ऑब्जर्वेशन कमेटी बैठेगी, उनको देखेगी कि क्या इस कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट से कितने डेवलपमेंट हुए, और फिर उसके आधार पर वो अपने रिकमेंडेशन देगी। तो उसी तरह साइमन कमीशन 1919 की जांच के लिए भारत आया। उपनिवेशिक परिस्थितियों की जांच पड़ताल के लिए इंग्लैंड से साइमन कमीशन जब भारत भेजा गया तो उसके विरुद्ध अखिल भारतीय पूरे भारत में एक व्यापक विरोध चलाया गया। इसके विरुद्ध अखिल भारतीय अभियान चलाया गया। क्यों? क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि व्हाइट मैन कमीशन में कोई भी इंडियंस नहीं था। अभी आंदोलन अखिल भारतीय हो गया, पूरे भारत लेवल पे हो गया। गांधी जी ने स्वयं इस आंदोलन में भाग नहीं लिया, लेकिन उन्होंने इस आंदोलन में अपना आशीर्वाद बनाए रखा। पीछे से उस आंदोलन को क्या कर रहे थे? हेल्प कर रहे थे, उसे गति देने का प्रयास करते थे। गांधी जी उस समय जब साइमन कमीशन आया, उस समय बारदौली में थे, किसान सत्याग्रह को फेवर कर रहे थे। 1929 दिसंबर के अंत में कांग्रेस ने अपना एक वार्षिक अधिवेशन लाहौर में शुरू किया। इस अधिवेशन में दो महत्वपूर्ण बातें थी, जो दो दृष्टियों से यह अधिवेशन अत्यंत महत्वपूर्ण था। पहला, जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष के रूप में, कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में इलेक्ट करना, जो ये प्रूफ करता था कि अब युवा पीढ़ी को नेतृत्व की मसाल सौंपने का समय आ गया है, सौंप दिया गया है। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण था वो था पूर्ण स्वराज या कंप्लीट इंडिपेंडेंस की घोषणा, प्रोक्लेमेशन ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस, प्रोक्लेमेशन ऑफ पूर्ण स्वराज। और इस तरीके से 26 जनवरी 1930 विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर और देशभक्ति के गीत गाकर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। गांधी जी ने स्वयं स्पष्ट निर्देश देकर बताया
कि इस दिन को कैसे मनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि स्वतंत्रता की उद्घोषणा सभी गांवों और सभी शहरों, यहां तक कि अगर पूरे देश में हो तो यह अच्छा होगा। ये जो प्रोक्लेमेशन है सभी गांव और सभी शहरों में पूरी तरीके से सबके द्वारा मनाया जाना चाहिए। अगर सभी जगहों पे एक समय में संगोष्ठियां हो तो यह और भी अच्छा होगा। गांधी जी ने सुझाव दिया कि नगाड़े पीटकर पारंपरिक तरीके से संगोष्ठी के स्थान पर घोषणा की जाए। राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाने से समारोह की शुरुआत होगी, जिनका बाकी हिस्सा किसी क्रिएटिव वर्क में लगाया जाए, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो। What I am telling that Gandhi ji suggested that the time of meeting be advertised in the traditional way. By the beginning of drums, the celebrations would begin with the hosting of the nation's flag, and the rest of the day would be spent in doing some constructive work, whether it's spinning or service of untouchables or reunion of Hindu and Muslims or prohibition work or even all these। गांधी जी ने कहा कि रचनात्मक कार्य में क्या हो तो कहते हैं कि चरखा चलाना, हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने के तमाम सारे प्रयत्न करना, अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट काम करना। कहते हैं कि शराब, इन स्थानों पे भी शराबबंदी या इस चीजों को भी क्या करना, ध्यान देना। तो गांधी जी ने वो सारे मार्ग बता दिए जिससे मूवमेंट को आगे चलाया जा सके। टुगेदर इज नॉट इम्पॉसिबल, कहते हैं कि जहां तक संभव हो सके इन चीजों को चलिए, साथ साथ चलना है। पार्टिसिपेंट्स वुड लाइक ए प्लीज affirming that it was the inalienable rights of the Indian peoples as any other people to have freedom and to enjoy the fruits of their toil, and that if any government deprives a people of these rights and oppress them, the people have further right to alter it or abolish it। और यहां से गांधी ने एक नई शुरुआत, एक नई जंग ब्रिटिश साम्राज्य के अगेंस्ट छेड़ दी, शुरू कर दिया। डियर स्टूडेंट, इस तरीके से एक पूरा का पूरा मूवमेंट आपको आगे बढ़ते हुए दिखाई देता है। गांधी जी ने यहां से आंदोलन को गति दी, दिशा दी। आई एम टेलिंग that the every steps which was taken by Mr. Gandhi in the national movement, that was pre-planned. Gandhi first decided that what he have to do in that movement. How can we protest them? The British imperial policies, British imperial rules by the legal ways. मैंने आपसे कहा, that's why I taught you that कि उन्होंने अपने पेपर यंग इंडिया में अपनी 11th डिमांड रखी, 11 मांग रखी। इन 11 मांगों में मैंने आपसे कहा था कि स्टर्लिंग पेंस के अनुपात को घटाना, आर्मी पे 50% की कटौती, सिविल सर्वेंट के वेतन की पर भी 50% की कटौती, विदेशी व्यापार, भारतीय व्यापार को प्रोटेक्ट करना, रेवेन्यू टैक्स 50% कम करना, वेपन्स लाइसेंस देने के लिए उन नीतियों में थोड़ा लिबरलाइजेशन करना। इस तरह के उनके 11 मांग थे जिनको उन्होंने मांगा था। माय डियर स्टूडेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स विच आई टोल्ड यू। व्हाट आई टोल्ड यू दैट कि गांधी जी ने किस तरीके से इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया। गांधी जी ने इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए किन किन पॉलिसीज को इस्तेमाल किया। और अब जब पूरी जनता तैयार हो गई तो गांधी जी ने डांडी मार्च के लिए लोगों को प्रमोट किया। गांधी जी ने डांडी मार्च करने की बात की। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने एक मूवमेंट चलाया। इस पूरे सविनय अवज्ञा आंदोलन में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में
गांधी जी ने आंदोलन को शुरू करने से पूर्व एक बार फिर ब्रिटिश सरकार को समझौते का प्रयास किया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उनसे समझौता कर ले, और इस हेतु लॉर्ड इरविन को उन्होंने 2 मार्च 1930 को एक लेटर लिखा। वायसराय ने इस पत्र को कोई भी संतोषजनक उत्तर वायसराय ने नहीं दिया, इसलिए महात्मा गांधी ने विवश होकर सत्याग्रह मूवमेंट चलाना शुरू किया। दैट वाज द साल्ट सत्याग्रह। दांडी मार्च, महात्मा गांधी 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930 अपने 78 फॉलोअर्स के साथ साबरमती आश्रम अहमदाबाद से अपने ऐतिहासिक दांडी, जो वर्तमान समय में गुजरात के नवसारी जिले में है, 12 मार्च 1930 को यात्रा प्रारंभ की। यात्रा 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को 241 मील लंबी पदयात्रा के लिए दांडी पहुंचे, और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी में नमक बना करके क्या किया, नमक कानून तोड़ डाला। ये एक बहुत बड़ा आंदोलन के रूप में धीरे धीरे पूरे देश में फैलने लगा। गांधी जी की दांडी यात्रा के बारे में सुभाष चंद्र बोस ने लिखा था कि महात्मा गांधी जी दांडी मार्च की तुलना इल्वा से लौटने पर नेपोलियन के पेरिस मार्च और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए मुसोलिनी का रोम मार्च की तरह था। इट मीन्स इतना फेमस, इतना लोकप्रिय ये मूवमेंट हुआ कि पूरे भारत में नहीं, पूरी दुनिया में इसकी गूंज होने लगी। अब ब्रिटिशर्स को लगने लगा था कि गलतियां कहीं न कहीं से हो गई हैं, कुछ फॉल्ट्स हुए हैं हमसे, पर ये गलती कहां से थी? इन चीजों को ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑब्जर्व कर रही थी। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन गलतियों को ऑब्जर्व करते हुए उन चीजों को अपने फेवर में लाने के लिए तमाम प्रयास किए। जब हमने जैसा आपसे कहा कि नेशनल मूवमेंट, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की गई, स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने के तुरंत बाद महात्मा गांधी ने घोषणा किया कि ब्रिटिश भारत के सर्वाधिक घृणित कानूनों में से एक, जिसमें नमक के उत्पादन और विक्रय पर राज्य के एक अधिकार दे दिया है, को तोड़ने के लिए एक यात्रा का नेतृत्व करेंगे। नमक एक अधिकार के जिस मुद्दे को उन्होंने चयन किया था, वो गांधी जी की कुशल समझदारी का एक उदाहरण था। प्रत्येक भारतीय घर में नमक का प्रयोग निश्चित रूप से करता था, लेकिन इसके बावजूद उन्हें घरेलू नमक के प्रयोग के लिए एक ऊंची कीमत देनी पड़ती थी। दुकानों के ऊंचे दाम से नमक खरीदना पड़ता था। नमक पर राज्य का एकाधिपत्य था और नमक बहुत ही लोकप्रिय था सभी में। इसको निशाना बनाते हुए गांधी जी ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ व्यापक आंदोलन की शुरुआत की। व्हाट आई एम टेलिंग यू दैट गांधी जी he was very much aware that the salt was very important things for the everyone. Salt play a very important role for the human life. कहते हैं कि which gave the state, I mean to say that soon after the observance of the Independence Day, Mahatma Gandhi announced that he would lead march to break one of the most widely disliked law in British India, which gave the states monopoly in the manufacture and sale of salt. Is speaking on the salt monopoly was another illustration of Gandhi ji tactical wisdom. For in very Indian households, salt was the indispensable, yet people were forbidden from making salt, even the domestic use, compiling them to buy from shop at high price. The state monopoly over salt was deeply unpopular. By making his target, Gandhiji hoped to mobilize a wider discontent against British rule. और फिर गांधी जी was started that Dandi March. In Dandi March, it was very clear instructions for all that you have to use the non-violence way. The Wave Miller, who was along with Gandhi ji when Gandhi ji was started Dandi March, who wrote about the all incidents,
day by day the incidents which was happened, which step was taken by Mr. Gandhi. It was wrote by the Babe Miller, who was the journalist, American journalist. वो लिखता है इसके बारे में. गांधी जी 12 March 1930 started the Dandi March from Sabarmati. I mean to say that Sabarmati Ashram, Ahmedabad to Dandi, Navsari, Gujarat. 241 mile. That is a very vast differences. With their 78 followers, गांधी जी अभियान में आगे बढ़े. गांधी जी ने 78 सहयोगियों के साथ 241 मील की लंबी यात्रा 12 मार्च 1930 को साबरमती से शुरू की और वो 5 अप्रैल 1930 को नवसारी, गुजरात में दांडी पहुंच गए. और यहां पे गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून को तोड़ा. हाथ से नमक उठा करके सिंबॉलिक रूप से नमक कानून तोड़ने का पूरा शो ऑफ किया, मतलब उनको दिखाया. इसकी आलोचना हुई. गांधी की दांडी मार्च की आलोचना ब्रिटिश न्यूज़पेपर मासमैन करते हुए करता है कि कई सारे ब्रिटिश न्यूज़पेपर इस चीज की आलोचना करते हैं. जब गांधी ने दांडी मार्च शुरू किया था, लिखते हैं लोग कि गांधी केतली में पानी गर्म करके ब्रिटिश एम्पायर को क्या हरा सकते हैं. इस तरह के तमाम सारे व्यंग्यात्मक लेख, आर्टिकल, कार्टून्स ब्रिटिश न्यूज़पेपर से बनाए गए. ब्रिटिश गवर्नमेंट यहां पे गांधी की स्ट्रेटजी नहीं समझ पाई. गांधी की जो मूवमेंट चल रहे थे उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट इजीली नहीं समझ पाई. और फिर यहां पे गांधी जी के द्वारा जो ये स्टेप चल रहे थे वो पूरे जब भारत में फैलने लगे, सभी जगहों पे दांडी मार्च सिंबॉलिक रूप में निकाली गई. तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, देयर नेम वाज संयुक्त प्रांत, यूनाइटेड प्रोविंसेस, एंड दिस टाइप ऑफ ऑल स्टेट्स, एवरीवन इन्वॉल्व हिमसेल्फ इन दांडी मार्च सिंबॉलिक रूप. सिंबॉलिक वे सभी लोगों ने लंबी यात्राएं की, समुद्र के पास पहुंच के नमक कानून तोड़ा. और इस तरीके से जो गांधी का ये आंदोलन था वो पूरे भारत में फैलने लगा. साथ ही साथ इसी समय लाल कुर्ती आंदोलन, रेड क्लॉथ मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय खान अब्दुल गफ्फार खान इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर. It is very interestingly when you listen that the Pathans, they don't know about Gandhi ji, but उन्होंने एक नारा लगाया कि मलंग, गांधी जी को मलंग के नाम से कह रहे थे कि कैसा व्यक्ति है जो मलंग है, जो देश हित के लिए कार्य कर रहा है. मलंग जिंदाबाद के नारे लगाए. उत्तर पश्चिम प्रांत में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, NWFP में, सामंत सीमांत गांधी के नाम से प्रसिद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान ने अपने खुदाई खिदमतगार मूवमेंट के ध्वज और अपने स्वयंसेवकों के साथ इस आंदोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाया. वे अपने जो फॉलोअर्स थे उनके साथ लाल कुर्ती पहने हुए, अपनी पोशाक के कारण लाल कुर्ती के रूप से विख्यात हुए. लाल कुर्ती आंदोलन विशुद्ध अहिंसक आंदोलन था. कौमी आजादी के लिए उन्होंने कांग्रेस तथा गांधी के नेतृत्व स्वीकार किया. लाल कुर्ती दल के नेता खान अब्दुल गफ्फार खान को फख्र-ए अफगान की उपाधि दी गई. खान अब्दुल गफ्फार खान ने पख्तून नामक एक पत्र निकाला और इस पत्र में जो पख्तून था, जो पश्तो भाषा में निकलती थी, 10 रोजा नाम से प्रकाशित हुई. गफ्फार खान को बादशाह खान की उपाधि दी गई, टाइटल मिली थी उसमें. अप्रैल 1943 में जिन्ना ने गफ्फार खान की तीखी आलोचना की. उन्होंने कहा कि बादशाह खान ने जंगी पठानों के हिंदूकरण तथा उन्हें नपुंसक बनाने की कार्रवाई दी. गफ्फार खान ने 1946-47 में पख्तूनिस्तान की मांग की. आज भी ये पाकिस्तान में एक बॉन्ड मैटर के रूप में दिखाई देता है. तो यहां पे आपने देखा कि पूरा का पूरा मूवमेंट
वेस्टर्न फ्रंटियर में भी गांधी के साथ था। पेशावर की एक घटना बताता हूं मैं। पेशावर दैट इंसिडेंट ऑफ वेरी मच इंपॉर्टेंट। पेशावर की तरह ही महत्वपूर्ण घटना गढ़वाली सिपाहियों की 2 प्लाटूनों की थी, जिन्होंने नॉन वायलेंस मूवमेंट के तहत लोगों को जो स्ट्राइक कर रहे थे, जो मार्च कर रहे थे, उनके ऊपर गोलियां चलाने से मना कर दिया। चंद्र सिंह गढ़वाली वो सिपाही था गढ़वाल रेजिमेंट का, जिन्होंने भारतीयों के ऊपर जो शांति मार्च निकाल रहे थे, गोली चलाने से मना कर दिया। एक बार फिर ब्रिटिशर्स को ऐसा लगने लगा कि कहीं रिवोल्ट 1857 की घटना ना आ जाए। उन्होंने चंद्र सिंह गढ़वाली का कोर्ट मार्शल किया, उसको लंबी जेल की सजा दी, और इससे स्पष्ट हो गया कि भारतीय राष्ट्रवाद की भावना धीरे धीरे कहां तक फैल रही थी, अब सेना के अंदर भी आना शुरू हो रही थी। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के बाद अब पूर्वोत्तर में भी, नॉर्थ ईस्ट में भी आंदोलन ने गति पकड़ी। रानी कौंडिन्य, नागा राजकुमारी, जिन्होंने इस मूवमेंट को तेजी से एक्सपेंड किया। अब देखिए पूर्वोत्तर में मणिपुर में सविनय आंदोलन में जोर पकड़ा। नागाओं ने यदुनांग के नेतृत्व में ब्रिटिश शासकों का पूरा सहयोग कर बंदी का आंदोलन चलाया। इस आंदोलन को जियातरंग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। नागा संघर्ष ने सशस्त्र संघर्ष का तरीका अपनाया ब्रिटिशर्स को अपने यहां से निकालने का। यदुनांग पर हत्या का अभियोग लगाकर उन्हें फांसी दे दी गई। इसके बाद यदुनांग की बहन रानी कौंडिन्य ने नागा विद्रोहियों की बागडोर संभाली, उन्हें भी गिरफ्तार किया, उन्हें लाइफ इम्प्रिजमेंट दिया गया। जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें रानी की उपाधि दी, और फिर जवाहरलाल नेहरू कहा कि एक दिन ऐसा आएगा जब उन्हें पूरा भारत स्नेहपूर्वक स्मरण करेगा, स्नेहपूर्वक याद करेगा। बंबई की कंडीशन साल्ट मार्च के दौरान अत्यंत ही महत्वपूर्ण थी। क्या था बंबई मूवमेंट साल्ट मार्च में, इसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।